خدا نہایت بزرگ، قدرت میں بڑھ کر سب سے عظیم ہے۔ اس نے سب چیزیں اپنے کلام کے وسیلے سے پیدا کی۔ آسمان اس کے جلال کو ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر ایک چیز اچھی تھی۔ ہر چیز خدا کی عظمت، بزرگی اور قدرت کی مظہر تھی۔ خداوند خدا نے مختلف اقسام کے پودے اور حیوانات پیدا کیے۔ چنانچہ خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں روح پھونکی، اور یوں انسان جیتی جان ہوا۔ اس پہلے انسان کا نام آدم تھا۔ اور پھر خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال کر اس سے ایک عورت بنائی تاکہ وہ آدم کی بیوی اور ساتھی ہو۔ یہ عورت حوا کہلائی جو دنیا کی پہلی خاتون تھی۔ چنانچہ خداوند خدا نے آدم اور حوا میں اپنی کچھ صفات بھی منتقل کر دی تاکہ وہ خدا کے ساتھ خوشگوار اور قریبی تعلق رکھ سکیں۔ وہ اس خوبصورت باغ عدن میں جو ان کے لیے تیار کیا گیا تھا خداوند خدا کے حضور شادمان تھے۔ وہاں پر نہ تو کوئی دکھ تکلیف تھی اور نہ ہی موت۔ خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے ماں سوائے ایک کے۔ اگر تو نے اس ممنوع درخت کا پھل کھایا تو مر جاؤ گے۔ لیکن ایک دن شیطان کے ورغلانے پر حوا نے پھل توڑا اور کھایا اور اپنے شوہر آدم کو دیا اور اس نے بھی کھایا۔ انہوں نے ایسا کیا کیونکہ انہوں نے خدا کی بات سے زیادہ شیطان کی بات کو ترجیح دی۔ اس فعل کی وجہ سے ان کا رشتہ خداوند خدا کے ساتھ قائم نہ رہا، کیونکہ خدا پاک ہے، اس لیے گنہگار اس کے حضور ٹھہر نہیں سکتا۔ تب خداوند خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکال دیا۔ انہوں نے خدا کی حکم دوری کی تھی، اس لیے انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے نتیجے میں آدم اور حوا اور ان کی نسل نے دکھ اور موت کی سزا پائی۔ مہربان اور رحیم خداوند خدا یہ منصوبہ رکھتا تھا کہ کس طرح بنی آدم کے ساتھ رفاقت کو بحال کرنا ہے تاکہ وہ ہمیشہ اس کی بادشاہی میں رہیں۔ کلام مقدس میں خداوند خدا اپنے منصوبے کو یوں ظاہر کرتا ہے کہ بنی نوع انسان جس سزا کے مستحق ہیں اسے انہیں نجات دلائے تاکہ ان کے گناہ اور شرمندگی مٹا ڈالے اور انسان پھر سے خدا کی بادشاہت میں رہ سکے۔ خدا نے اپنے اس منصوبے کا کچھ حصہ اپنے بندے ابراہم پر ظاہر کیا۔ ابراہم نے خدا پر بھروسہ کیا اور اس کی تعظیم کی۔ خداوند خدا نے ابراہم کو برکت بخشنے اور اس کے وسیلے سے اقوام عالم کو برکت دینے کا وعدہ کیا۔ خداوند خدا نے یہ بھی وعدہ کیا کہ میں تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے سمندر کے کنارے کی ریت اور آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا۔ ابراہم خدا پر ایمان لایا، جس کی وجہ سے خدا نے اسے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیا۔ ایک دن خداوند خدا نے ابراہم کو آزمایا کہ آیا وہ اس پر بھروسہ رکھتا اور اس کے احکام کی فرما برداری کرتا ہے۔ خداوند خدا نے ابراہم سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو میرے لیے قربان کر دے۔ ابراہم جانتا تھا کہ اسی بیٹے کے وسیلے خدا نے اس کی نسل بڑھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تب بھی ابراہم نے خدا پر بھروسہ کیا اور اس کی فرما برداری کی، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو خداوند خدا کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو گیا۔ ابراہم نے اپنی چھری اٹھائی، لیکن خدا نے ابراہم سے فرمایا کہ لڑکے کو نقصان نہ دے۔ میں جانتا ہوں کہ تو میرا خوف مانتا اور میری فرما برداری کرنے کو تیار ہے۔ پھر ابراہم نے نگاہ کی اور اپنے نزدیک ایک مینڈھا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہم نے اس مینڈھے کو لیا جو خدا نے مہیا کیا تھا اور اسے اپنے بیٹے کے بدلے خدا کے حضور قربان کر دیا۔ جب خدا رحیم و کریم نے ابراہم کے بیٹے کے عوض مینڈھا قربان ہونے کے لیے مہیا کیا تو اس نے انسانوں کے لیے اپنی عظیم محبت ابراہم پر ظاہر کی تاکہ بتائے کہ اس کی محبت ویسی ہی ہے جیسی ایک اچھا باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے۔ اس واقعے کے ذریعے خدا نے ظاہر کیا کہ اس نے بنی نوع انسان کے گناہوں کے لیے ایک ہی قربانی کا انتظام کر رکھا ہے۔ خداوند کریم نے کلام مقدس میں ظاہر کیا کہ وہ ایک بے گناہ شخص کو بنی آدم کے گناہوں کے عوض موت کا وعدہ کرنے بھیجے گا تاکہ وہ بنی آدم کے گناہ اور شرمندگی دور کرے۔ وہ اس عظیم قربانی سے ایمان لانے والوں کے لیے خدا سے رفاقت کا دروازہ کھول دے گا تاکہ وہ ہمیشہ خدا کی قربت میں رہیں۔ نبیوں نے اس شخصیت کو مسیح کہہ کر مخاطب کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ خداوند خدا مسیح کو بھیجے گا کہ وہ لوگوں کو گناہوں سے نجات دلائے اور ابد تک خدا عظیم کے نام سے سلطنت قائم کرے۔
مسیح کے آنے سے کئی سو سال پہلے نبیوں نے فرمایا کہ مسیح کیا کرے گا اور کیا کچھ اس کے ساتھ ہوگا۔ داؤد نبی نے فرمایا کہ خدا مسیح سے کہے گا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ خدا نخواستہ نبیوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ خدا کا جسمانی بیٹا ہوگا، بلکہ کلام مقدس میں فرمایا ہے کہ وہ ازلی اور ابدی کلام خدا ہے، جسے خدا نے معجزانہ طور پر کنواری مریم کے بطن میں بھیجا اور وہ انسان کی صورت پر پیدا ہوا۔ نبیوں نے خدا کا بیٹا کی اصطلاح استعمال کی تاکہ مسیح کے خدا کے ساتھ قریبی رشتے کو بیان کیا جائے اور اس طرح وہ سارے جہان کے لوگوں کا نجات دہندہ اور بادشاہ ہو۔ یسایہ نبی فرماتے ہیں، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی۔ نبیوں کی معرفت یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح کی پیدائش بیت الحم میں ہوگی اور وہ یروشلم میں ان کے بادشاہ کی حیثیت سے گدھے پر سوار ہو کر داخل ہوگا۔ نبیوں کی معرفت یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح کا ایک پیروکار چاندی کے 30 سکوں کے عوض اسے گرفتار کروا ڈالے گا۔ داؤد نبی نے فرمایا کہ مسیح اپنی جان قربان کر دے گا مگر خداوند خدا اسے تیسرے دن پھر سے زندہ کرے گا۔ دانیل نبی نے مسیح کو آدمزاد کہہ کر مخاطب کیا اور فرمایا کہ وہ بادلوں پر اٹھایا جائے گا اور آسمان تک پہنچ جائے گا، جہاں خدا اسے تمام قوموں کے لوگوں پر ابدی اختیار بخشے گا۔ 2000 سال پہلے ایک ایسی شخصیت اس دنیا میں آئی جس کا نام یسوع المسیح تھا۔ جب لوگوں نے اس کے عجیب کام دیکھے جو اس نے کیے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کیا یہی مسیح ہے؟ نبیوں نے جو کچھ آنے والے مسیح کے متعلق فرمایا تھا، کیا وہ سب کچھ اس کی زندگی میں پایا جاتا ہے؟ اس فلم میں یہ دکھایا گیا ہے کہ انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح کون ہے اور انہوں نے کیا کیا اور کیا کہا۔ اس فلم میں ایک شخص یسوع کا کردار ادا کرتا ہے۔ یوں تو کوئی بھی ایسا کرنے کے لائق نہیں، لیکن یہ فلم اس لیے بنائی گئی ہے کہ لوگ یسوع کے متعلق جان سکیں، سیکھ سکیں اور برکات حاصل کر سکیں جن کا وعدہ قادر مطلق خدا نے کیا ہے۔ عزیز تھیوفلس، میں ان باتوں کا ذکر جو ہمارے درمیان ہو چکی ہیں ترتیب سے لکھ رہا ہوں تاکہ ہر ایک بات کی سچائی اور پختگی کا تمہیں علم ہو جائے۔ ان دنوں میں جب قیصر اگسطس روم کا حاکم تھا اور ہیرودیس یہودیہ کا بادشاہ، خدا نے جبرائیل فرشتے کو ناصرت کے شہر کی ایک کنواری کے پاس بھیجا جس کا نام مریم تھا۔ خوف نہ کر مریم، خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام یسوع رکھنا۔ یہ کیسے ہوگا؟ میں تو کنواری ہوں۔ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور اسی سبب وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا اور اس کی سلطنت کا آخر نہ ہوگا۔ اور مریم یہودیہ کے شہر اپنی رشتہ دار الیشبا کو ملنے گئی، وہ بھی معجزانہ طور پر حاملہ تھی۔ الیشبا، مریم، میری بہن مریم، تو سب عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے وہ بچہ جو تجھ سے پیدا ہوگا۔ جو ہی میں نے تمہارے سلام کی آواز سنی، بچہ ہمارے خوشی کے پیٹ میں اچھل پڑا۔ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ ناصرت کے رہنے والوں سنو، قیصر اگسطس کے حکم کے مطابق گلیل اور یہودیہ کے تمام رہنے والے مردم شماری کے لیے اپنے اپنے باپ دادا کے شہروں اور گاؤں میں نام درج کرائیں۔ مریم یہودیہ کے بیت لحم میں اپنے منگیتر یوسف کے ہمراہ نام درج کروانے گئی۔ مگر بیت لحم میں ان کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، جگہ ملی بھی تو مویشیوں کے استبل میں۔ اسی ملک کے علاقے میں چند چرواہے رات کو اپنے ریوڑ کی نگہبانی کر رہے تھے جب ایک فرشتہ ان پر ظاہر ہوا اور خداوند کا نور ان کے چوگرد چمکا۔ آج داؤد کے شہر میں تمہاری نجات کے لیے مسیح خداوند پیدا ہوئے ہیں۔
चरवाहों ने चरनी में पड़े बच्चे को देखने के लिए जल्दी की और उन्होंने मुकद्दसा कुंवारी माँ और मुनज्जी की पैदाइश के बयान करने में पहल की। हफ्ते के बाद जब बच्चे के खतने का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। फिर मरियम और यूसुफ बच्चे को खुदावंद के सामने पेश करने के लिए ले गए। हैकल में एक नेक और रास्तबाज आदमी था जिससे रूहुल कुदस ने वादा किया था कि जब तक वो मसीह को न देख ले नहीं मरेगा। उसका नाम शमऊन था। खुदावंद अपने बंदे को अपने कौल के मुताबिक सलामती से रुखसत कर। मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। ये तेरा चुनीदा बच्चा है। खुदा तुम दोनों को बरकत दे। जब वो मूसा की शरीयत के मुताबिक तमाम रस्में पूरी कर चुके तो यरूशलेम छोड़कर नासरत वापस लौट गए। जब यीशु की उम्र 12 बरस की हुई तो यूसुफ और मरियम ईद फसा पर उन्हें यरूशलेम ले गए। वापसी पर घर जाते हुए समझे कि लड़का उनके साथ है, मगर यीशु पीछे रह गए थे। ऐसे सवाल पूछने वाला किसका बच्चा है? ये नासरत से है। हमारा ख्याल था ये हमारे साथ ही है। हम माफी चाहते हैं। जिन्होंने उसे सुना वो हैरान रह गए। बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? तेरा बाप और मैं परेशानी में तुझे ढूंढते रहे। आप मुझे क्यों ढूंढते थे? आप जानते नहीं कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर था। यीशु उनके साथ नासरत आए और वो दानिश, कद्द क़ामत, खुदा और इंसान की नज़र में मकबूल होते गए। बादशाह तिब्रियुस की हुकूमत के 15वें बरस, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का गवर्नर और हेरोदीस गलील का हुक्मरान था, हननिया और कायफा सरदार काहिन थे, खुदावंद का कलाम बयाबान में यूहन्ना पर नाजिल हुआ। वो यर्दन पार से मुल्क में आकर गुनाहों से तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करने लगा। अपने गुनाहों से तौबा करो और बपतिस्मा लो तो खुदा तुम्हारे गुनाह माफ करेगा। यशाया नबी की किताब में लिखा है, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज, खुदावंद के लिए राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, जो टेढ़ा है सीधा किया जाएगा, हर एक नाहमवार हमवार किया जाएगा और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। हम क्या करें? बताएं हमें क्या करना चाहिए? आए शाम के बच्चों, आप क्या चाहते हैं कि हम करें? बताएं बताएं, हम कौन सा रास्ता अपनाएं? जिसके पास 2 कुर्ते हों, एक उसको दे दे जिसके पास नहीं, और जिसके पास खाना हो वो बांट खाए। उस्ताद, हम महसूल लेने वाले हैं, हम क्या करें? जितना मुनासिब है उससे ज्यादा ना लो। हम क्या करें? हमें भी तो बताएं। किसी से जबरदस्ती नाहक कुछ ना लो और किसी पर झूठा इल्जाम ना लगाओ। अपनी तनख्वाह पर कनात करो। हमें बताएं, क्या आप मसीह हैं? मैं तो बपतिस्मा पानी से देता हूँ, मगर जो आने वाला है मुझसे बहुत जोरावर है।
میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق ہوں۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے تاکہ اس کو خوب پھٹکے اور گیہوں کو اپنے گودام میں جمع کرے۔ اور روح القدس جسمانی شکل میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا۔ اور آسمان سے ایک آواز آئی، تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں بہت خوش ہوں۔ جب یسوع تعلیم دینے لگے، وہ 30 برس کے تھے۔ وہ روح القدس سے بھرے ہوئے یردن سے واپس لوٹے، اور روح القدس انہیں بیابان میں لے گیا تاکہ ابلیس سے 40 دن آزمائے جائیں۔ ان دنوں میں انہوں نے کچھ نہ کھایا۔ ابلیس نے ان سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اس پتھر سے کہہ روٹی بن جائے۔ یوں ہی لکھا ہوا ہے، آدمی صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا رہے گا بلکہ خدا کے کلام سے۔ پھر ابلیس انہیں اونچے مقام پر لے گیا اور پل بھر میں دنیا کی بادشاہی دکھائی۔ میں تجھے اس کا سارا اختیار اور اس کی تمام دولت دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ میرے اختیار میں ہے، اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ سب کچھ تیرا ہو جائے گا اگر تو مجھے سجدہ کرے۔ لکھا ہوا ہے، تو اپنے خداوند خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ پھر ابلیس انہیں یروشلم لے گیا اور ہیکل کے اونچے کنگرے پر کھڑا کر کے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے، تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کرے، یہ بھی کہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ یہ بھی لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر وہ ناصرت میں آئے جہاں ان کی پرورش ہوئی تھی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ سبت کے دن وہ حسب معمول ہیکل میں گئے۔ جہاں انہیں یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھنے کو دیا گیا۔ خداوند کی روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے اس لیے چنا ہے کہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ اسیروں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی دوں، مظلوموں کو چھڑاؤں اور اعلان کروں کہ وہ وقت آ گیا ہے جب خداوند اپنے لوگوں کو بچائے گا۔ انہوں نے خوب کہا۔
कलाम का जो हिस्सा आज आपने सुना है वो साबित हो गया। कलाम पूरा हुआ, लेकिन ये वादा तो मसीह पूरा कर सकता है। हम कैसे जाने? बेशक ये मिसल तुम मुझ पर कहोगे, ऐ हकीम अपने आप को अच्छा कर। तुम ये भी कहोगे वही काम तू अपने शहर में भी कर जैसे काम कफरनहूम में किए गए। मैं तुम्हें बताता हूं, कोई पैगंबर अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। वो उन्हें पहाड़ी से गिरा देना चाहते थे, लेकिन वो भीड़ में से बचकर निकल गए और अपनी राह ली। और गलील के एक शहर कफरनहूम आ गए। और हर तरफ रोमियों की हुक्मरानी थी और लोग मसीह के मुंतजिर थे कि वो उन्हें जुल्म और सितम से नजात दें। तुम पर सलामती हो। आप पर भी मालिक। जमून मैं तुम्हारी कश्ती पर। क्यों नहीं? ये यहाँ से जाने तो नहीं लगे? हमसे कोई बात करे, हमसे कोई बात करे। कुछ बताएं तो। यीशु हमें सिखाएं। एक दफा का जिक्र है, दो आदमी हैकल में दुआ मांगने के लिए गए। उनमें एक फरीसी था और दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी अकेला ही आगे बढ़कर दुआ मांगने लगा। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं दूसरों की माने न तो लालची, न बददयानत और न ही जानी। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि इस महसूल लेने वाले की तरह नहीं हूं। हफ्ते में 2 दफा मैं रोजा भी रखता हूं और अपनी आमदन पर दया की भी देता हूं। मगर महसूल लेने वाला दूर खड़े होकर आसमान की तरफ आंखें उठाए बगैर छाती पीट पीट कर कहने लगा, ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम फरमा। मैं तुम्हें बताता हूं, फरीसी नहीं बल्कि महसूल लेने वाला खुदावंद की नजर में रास्तबाज ठहर कर गया। जो कोई भी अपने आप को बड़ा समझता है उसे नीचा दिखाया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा समझता है उसे अजमतें मिलेंगी। कश्ती को गहरे पानी में ले चलो और अपने साथियों के साथ मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। ऐ मालिक, हमने रात भर मेहनत की है मगर मिला कुछ भी नहीं। अगर आप कहते हैं तो हम जाल डाल देते हैं। योना! याकूब, यूहन्ना, जल्दी कश्ती लाओ, हमारी मदद करो, जल्दी करो। हम तो पहले ही मसरूफ हैं। काफी हैं, बहुत हो गई हैं, बहुत हो गई हैं। खुदावंद यहां से चले जाए, मैं एक गुनाहगार इंसान हूं। तुम खौफ मत खाओ, आज से तुम आदमगीर बनोगे। मेरे पास आओ और मेरा कलाम सुनो, मेरी सुनो और जिंदगी पाओ। खुदावंद को ढूंढो जब तक वो मिल सकता है, उसको पुकारो जब तक वो करीब है। शरीर अपनी बुरी राह तर्क करे और ना रास्त अपने ख्यालों को। जब वो खुदावंद की तरफ रुजू करेगा तो वो उस पर रहम करेगा, क्योंकि वो फैयाजी से माफ करता है। तुम खुशी से बाहर जाओगे और सलामती से लौटोगे। वो आ रहे हैं, आ गए, देखो। यस्सु, यस्सु, मैं अर्ज करता हूँ मेरी बच्ची को बचा ले। हजूर रहम करें, वो सिर्फ 12 बरस की है और मर रही है। बराए करम मेरे साथ आए। मुझे अफसोस है,
तुम्हारी बेटी मर गई है, अब उस्ताद को तकलीफ ना दो। डरो मत, फकत एतकाद रखो और वो बच जाएगी। रो मत, ये मरी नहीं बल्कि सिर्फ नींद में है। जाग मेरी बेटी। इसे कुछ खाने को दो। वादा करो जो कुछ यहां हुआ है वो किसी को नहीं बताओगे। इसके बाद उन्होंने मत्ती नामी महसूल लेने वाले को देखा जो महसूल चौकी पर महसूल लेने बैठा था। मेरे साथ आओ। और यीशु पहाड़ पर दुआ करने गए और सारी रात खुदा से दुआ करने में गुजार दी। और जब दिन निकला तो उन्होंने 12 को चुन लिया और उन्हें रसूल का लक़ब दिया। शमून, जिसका नाम उन्होंने पतरस रखा, और इंद्रियास उसका भाई, याकूब, और यूहन्ना, फिलिप्पुस, और बरतुलमाई, और मत्ती, और तूमा, हिल्फाई का बेटा याकूब, और शमून जो ज़ेलोतीस कहलाया, और यहूदा याकूब का भाई, और यहूदा इस्करियोती जिसने उन्हें पकड़वा भी दिया। मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो भूखे हो, क्योंकि तुम आसूदा होगे। मुबारक हो तुम जो रोते हो, क्योंकि हंसोगे।
मुबारक हो तुम जब लोग मेरी वजह से तुमसे नफरत करें, तुम्हें रद्द करें और बेइज्जत करें और इब्ने आदम के सबब तुम्हें बुरा भला कहें। खुशी करना और शादमान होकर रक्स करना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उनके आबा अजदाद ने भी नबियों के साथ ऐसा ही किया था। सत्रह, 18, 19, 20, मेरे पास तो यही है। क्या मतलब तुम्हारे पास यही है? तुम पर अफसोस जो अब दौलतमंद हो, तुम आरामदेह जिंदगी गुजार चुके हो। अमीर होना नहीं चाहता, जरूर दीवाना है। अफसोस है तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि तुम मातम करोगे। अफसोस तुम पर जब तमाम लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के बारे में भी ऐसा ही कहा करते थे। लेकिन मैं तुमसे जो मेरी सुनते हो कहता हूं, अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो, नफरत करने वालों से भलाई करो, लानत करने वालों के लिए बरकत चाहो और तहकीर करने वालों के लिए दुआ करो। अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो। जो तुम्हारा चोगा मांगे उसे अपना कुर्ता भी दे दो। जो कोई तुमसे मांगे उसे दे दो। और अगर कोई तुम्हारा माल ले ले तो उससे वापस ना तलब करो। दूसरों से वही करो जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान होगा, क्योंकि गुनहगार भी अपने मोहब्बत करने वालों से प्यार करते हैं। और अगर अच्छे सलूक के बदले अच्छा सलूक करो तो बरकत के हकदार कैसे होगे? ऐसा तो पापी भी करते हैं। उसने उसे कैसे छुआ? उसने बात ही क्यों की? शर्म की बात है। नहीं, दुश्मनों से प्यार करो, उनका भला चाहो, कर्ज देकर वापस न चाहो, और तब तुम्हारा अजर बहुत बड़ा होगा। यूं तुम खुदावंद ताला के बेटे कहलाओगे, क्योंकि वो तो नाशुक्रों और बदों पर भी मेहरबान है। रहम किया करो जिस तरह तुम्हारा बाप भी रहीम है। हमें बचा यसू। ऐब निकालोगे तो तुम्हारे भी ऐब निकाले जाएंगे। इल्जाम ना दो तो तुम पर भी इल्जाम न लगेगा। माफ करो तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा। हमें अपनी राह दिखाओ खुदावन। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस पैमाने से तुम नापते हो तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। अगर ऐसा हुआ तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तुम्हें भाई की आंख का तिनका तो नजर आता है, मगर अपनी आंख का शहतीर नजर नहीं आता। हमें रास्ता दिखा मालिक। खुदावंद हमारी जरूरत है अब। मुबारक है वो माँ जिसने आपको जन्म दिया और परवरिश की। मगर मुबारक हैं वो जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। मैं इस आदमी को जानना चाहता हूँ। तुम्हारे ख्याल में क्या वो मसीह है? इस फरीसी ने यीशु को अपने घर खाने पर बुलाया। यीशु उसके घर गए और खाना खाने बैठे। तुम इधर से जाओ बच्चों, सुना तुमने? जाओ, कोई ना कोई शरारत करते ही रहते हैं। ये यहाँ क्या कर रही है मालूम नहीं। ये क्या कर रही है? अगर ये हकीकतन मसीह होता तो जान चाहता कि ये कौन है। इसको इल्म होता कि वो कैसी गुनहगार है। मैं इस औरत को जानता हूं शमून।
मैं तुझे कुछ बताता हूं। एक साहूकार के 2 कर्जदार थे जिन्हें कर्ज देना था। एक को चांदी के 500 सिक्के और दूसरे को 50। दोनों में से कोई भी कर्ज अदा न कर सका। उसने दोनों को माफ कर दिया। उनमें से कौन ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा? मेरे ख्याल में वो जिसकी ज्यादा माफी हुई। दुरुस्त कहा तुमने। इस औरत को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मेरे पांव धोने को पानी न दिया, मगर इसने मेरे पांव अपने आंसुओं से धोए और अपने बालों से खुश किए। तुमने बोसे से मेरा इस्तकबाल न किया, मगर जब से मैं आया हूं इसने मेरे पांव चूमना न छोड़े। तुमने मेरे सर पर डालने को तेल न दिया, मगर इसने मेरे पांव पर कीमती इत्र डाला। मैं तुम्हें बताऊं, चूंकि इसने ज्यादा मोहब्बत दिखाई, इसके गुनाह भी जो ज्यादा थे माफ हुए, लेकिन जिसके गुनाह कम माफ हुए वो कम मोहब्बत दिखाता है। तुम्हारे सब गुनाह माफ हुए, तुम्हारे ईमान ने तुम्हें बचा लिया। सलामती से जाओ। और यीशु गांव-गांव और शहर-शहर खुदा की बादशाहत की मुनादी करते रहे। उनके 12 शागिर्द और चंद औरतें भी जो बद रूहों से आज़ाद हुई थीं उनके साथ थीं। मरियम जो मगदलीनी कहलाती है, योआना हेरोदीस के दीवान खुजा की बीवी, और सुसन्ना। लेकिन रोमी हुकूमत के गलील के हुक्मरान हेरोदीस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इसलिए कैद किया था कि उसने उसे भाई की बीवी से शादी करने पर सरजनिश की थी। जब हम नाइन के फाटक के पास आए तो देखा एक जनाजा बाहर आ रहा था और वो मुर्दा बेवा का इकलौता बेटा था। जब यीशु ने माँ को देखा तो उसका दिल भर आया। उन्होंने कफन को छुआ और कहा, नौजवान, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और यीशु ने उसे माँ के हवाले किया। पूछिए कि आप ही हैं जो यूहन्ना ने कहा जो आने वाला है, क्या किसी और शख्स की राह देखी? मालिक, मालिक, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पूछा है, क्या आप ही वो हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी और की राह देखते रहें? जो कुछ तुमने देखा या सुना जाकर यूहन्ना को बताओ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। मुबारक है वो जो मेरी बातों पर शक नहीं करते। मुझे उठाएं। मेरे कंधे पे बैठ जाओ। नजर आता है? मुझे यीशु नजर आ रहे हैं। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और जब बीज का छट्टा दिया तो कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया, और कुछ को हवा की चिड़ियों ने चुग लिया, और कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरा, और जब उगा तो नमी न मिलने की वजह से वहीं सूख गया। और कुछ बीज झाड़ियों में जा गिरा, और झाड़ियों ने उसको छुपा लिया और दबा लिया। और कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरा और उगा और बहुत सा फल लाया, एक बीज 100 गुना ज्यादा। मालिक, जब भीड़ होती है आप तमसीलों में क्यों बयान करते हैं? तुम्हें तो खुदा की बादशाहत के भेदों की समझ अता की गई है, मगर दूसरों को तमसीलों में बताया जाता है ताकि वो देखते हुए न देखें और समझते हुए न समझें। इस तमसील का मतलब यह है ये बीज
खुदा का जिंदा कलाम है। और वो बीज जो राह के किनारे गिरा से मुराद है जो कलाम सुनते हैं, मगर इब्लीस आकर पैगाम उनके दिलों से चुरा कर ले जाता है ताकि वो कहीं ईमान लाकर बचना चाहें। वो बीज जो पथरीली जमीन पर गिरा से मुराद वो हैं जो कलाम सुनकर खुशी से कबूल करते हैं मगर जड़ नहीं पकड़ते। उनका ईमान वक्ती होता है और जब आजमाइश आती है तो वो फिर जाती है। वो बीज जो झाड़ियों में गिरा से मुराद ऐसे लोग हैं जो सुनते हैं मगर दुनिया की फिक्र, दौलत और जिंदगी की आसाइशें उन्हें आ दबाती हैं और उनका फल कभी पकता नहीं। लेकिन वो बीज जो अच्छी जमीन पर गिरा, इससे मुराद वो लोग हैं जो पैगाम सुनकर अच्छे और फर्माबरदार दिल से कबूल करते हैं और बर्दाश्त करके बहुत सा फल लाते हैं। कोई चिराग जलाकर बर्तन के नीचे नहीं छुपाता या पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वो उसे चिराग दान पर रखता है ताकि अंदर आने वालों को रोशनी मिले। जो कुछ पोशीदा है जाहिर किया जाएगा और जो कुछ ढका है उसे अयां किया जाएगा और रोशनी में लाया जाएगा। लिहाजा खबरदार रहो और गौर से सुना करो, क्योंकि जिसके पास है उससे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो वो समझता है कि उसके पास है। उस्ताद, आपकी वालदा और भाई बाहर खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी माँ और भाई वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। एक दिन यीशु अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में बैठे और उनसे कहा, आओ झील के उस पार चलें। और जब वो जा रहे थे यीशु सो गए। तुम्हारा ईमान कहाँ गया? फिर वो खेते हुए गरासीनियों के इलाके में जो गलील की झील के पार है पहुंचे। मुझसे क्या कहा? मेहनत करता, खुदा पे बता डाल। तेरा नाम क्या है? लश्कर। खुदा पर मेहनत करता, हमें अज़ाब में न डाल, हमें जाने दे इन सफरों में, जाने दे, जाने दे। और बदरूहें आदमी से निकलकर सुअरों में जा घुसी। वापस आओ। यहाँ से जाओ। ओ जादूगर, हमें छोड़ दो, इस जगह से चले जाओ। पीछे छोड़ो, यहाँ से चले जाओ।
جہاں آپ جائیں گے میں بھی جاؤں گا. مجھے لے چلیں. گھر واپس جاؤ اور بتاؤ خدا نے تم پر کیا احسان کیا. یسوع اور ان کے شاگرد پھر بیت سیدا کی طرف چلے گئے. جب لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ ان کے پیچھے ہو لیے. بعد از دوپہر پترس نے ان سے کہا، مالک اب لوگوں کو بھیج دیجیے تاکہ وہ قریبی شہروں اور دیہاتوں میں جا کر اپنے کھانے پینے کا کوئی بندوبست کر سکیں. یہ تو بالکل ویران جگہ ہے. تم خود دن کھانے کے لیے کچھ دو. ہمارے پاس صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں. مبارک ہے تو خداوند ہے ہمارے خدا، کائنات کے بادشاہ، جو زمین سے روٹی پیدا کرتا ہے. یہ تو معجزہ ہے. نہ قدر یقین. لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ بعض تو یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور بعض کہتے ہیں کہ ایلیا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ پرانے نبیوں میں سے کوئی نبی ہے جو جی اٹھا ہے. تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو میں کون ہوں؟ آپ خدا کے مسیح ہیں. یہ بات ابھی کسی کو نہ بتانا. ضروری ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے اور رد کیا جائے، اسے موت کے حوالے کیا جائے، لیکن تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے. تم میں سے کون میرے ساتھ آئے گا؟ میں آپ کے پیچھے آؤں گا مالک. اجازت دیں گھر جا کر خاندان کو خداحافظ کہوں. جو کوئی حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف دیکھتا ہے خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے. جو کوئی میرے ساتھ آنا چاہتا ہے اس کو خود کو بھول جانا ہوگا، روز اپنی صلیب اٹھانی ہوگی اور میرے پیچھے آنا ہوگا. جو کوئی اپنی جان بچائے گا اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میرے لیے اپنی جان کھوئے گا اسے بچائے گا. اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کھو دے اسے کیا فائدہ؟ اگر کوئی مجھ سے یا میری تعلیم سے شرمائے گا تو ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے اور پاک فرشتوں کے جلال میں آئے گا تو اس سے شرمائے گا. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں
یہاں کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کی بادشاہی دیکھنے سے پہلے نہ مریں گے۔ تب یسوع حنا، یعقوب اور پترس کو ساتھ لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گئے۔ جب وہ دعا کر رہے تھے ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور ان کے کپڑے سفید براق ہو گئے۔ اچانک دو آدمی ان سے باتیں کرنے لگے۔ وہ موسیٰ اور ایلیا تھے جو آسمانی جلال میں ظاہر ہوئے تھے۔ آپ خدا کا مقصد پورا کریں گے۔ آپ کا انتقال یروشلم میں ہوگا۔ جب وہ جا رہے تھے پترس نے یسوع سے کہا، مالک، کتنا اچھا ہے کہ ہم یہاں ہیں۔ ہم یہاں 3 خیمے بنائیں گے، ایک آپ کے لیے۔ جب پترس بولے بادل نے انہیں چھپا لیا اور شاگرد گھبرا گئے۔ ایلیا کے لیے۔ اور بادل میں سے ایک آواز سنائی دی، یہ میرا چنا ہوا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ استاد میرے بیٹے پہ رحم فرمائیے، خدا را اسے بچا لیجئے، یہ میرا اکیلا بیٹا ہے۔ میں نے آپ کے شاگردوں سے بھی کہا مگر وہ بھی کچھ نہ کر سکے۔ اے بے اعتقاد گمراہ لوگوں، میں کب تک تمہارے ساتھ رہ کر تمہیں برداشت کروں؟ اپنے بیٹے کو یہاں لاؤ۔ چہرہ بھی ٹھیک ہو گیا، تعجب ہے۔ دعا کرنا سکھائیے جیسے یوحنا نے اپنے شاگردوں کو سکھائی۔ جب دعا کرو کہو، اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی ہمیں آج دے، ہمارے گناہ معاف کر جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو بھی معاف کرتے ہیں، ہمیں بھی آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ مانگو تو پاؤ گے، ڈھونڈو تو ملے گا، کھٹکھٹاؤ تو دروازہ کھولا جائے گا۔ کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے پاتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ حاصل کرتا ہے، اور جو کوئی کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے۔
आप में से कोई ऐसा बाप है जिसका बेटा अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे, फिर अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा? मैं तुम्हें बताता हूं, ये ख्याल ना करो कि हम क्या खाएंगे और ना ही अपने बदन का कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जिंदगी खाने से और बदन ओढ़ने से बढ़कर है। कौवों पर गौर करो, वो न बोते हैं, न काटते हैं और न ही उनका कोई घर है, फिर भी खुदा इन्हें खिलाता है। तुम्हारी कीमत तो चिड़ियों से बढ़कर है। फिक्र करके तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम जिंदगी बढ़ा सकते हो? जब तुम ये छोटी सी बात नहीं कर सकते तो फिर तुम क्यों घबराते हो? जंगली फूलों को देखो कैसे बढ़ते हैं, वो न काटते हैं और न मेहनत करते हैं। सुलेमान बादशाह अपनी तमाम शान शौकत के बावजूद इनकी मानंद न थे। अगर खुदा जंगली घास को ऐसी पोशाक पहनाता है जो आज है और कल तन्नूर में झोंकी जाएगी, कैसे है कि तुम्हें न पहनाए? है कम एतकादो, हमारा ईमान बढ़ाइए। अगर तुम्हारा ईमान सरसों के दाने के बराबर भी हो तो शहतूत के इस पेड़ से कहो कि जड़ से उखड़कर समंदर में जा लग, तो ये तुम्हारा कहा मानेगा। आजमाइशों का आना जरूर है, अफसोस इस पर जिसके बायस आए। इसके लिए बेहतर होता कि चक्की का पार्ट उसके गले में डालकर उसे समंदर में फेंका जाता, बजाय इसके कि वो छोटों में से किसी से गुनाह कराए। खुदा की बादशाहत कैसी है? वो ऐसी है कि आदमी सरसों का एक बीज ले, उसे अपने खेत में बोए, पौधा उगकर एक दरख्त बन जाए और परिंदे उसकी डालियों पर बसेरा करें। इसकी बातें हमारी समझ में नहीं आती। आप इन महसूल लेने वालों और अछूतों के साथ क्यों खाते पीते हैं? तंदुरुस्तों को हकीम की जरूरत नहीं होती, बल्कि उन्हें जो बीमार होते हैं। मैं रास्तबाजों को बुलाने और तौबा कराने नहीं आया, बल्कि नारास्तों को। हमें बादशाहत के बारे में बताएं, इसके अलावा भी कुछ है? ऐ छोटे गल्ले ना डर, तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाहत अता करे। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और ऐसे बटवे ले लो जो खर्च ना हो, और अपनी दौलत आसमान पर जमा करो जहां वो कम नहीं होती, जिस जगह चोर नहीं पहुंच सकता और न कीड़ा खराब कर सकता है। क्योंकि जहां तुम्हारा माल है वहां तुम्हारा दिल होगा। खातून, आपकी जान बीमारी से छूट गई। देखिए, वो शफा पा गई। ये तो मोजिज़ा है। देखो, वो अब ठीक है। आओ, देखो। खुदावंद, तेरी तारीफ 18 बरस। खुदा तुझे बरकत दे। हफ्ते के 6 दिनों में हम काम करते हैं, इसलिए इन दिनों में शिफा के लिए आओ, लेकिन सबत के दिन नहीं। ऐ रियाकारो, तुम में से कौन ऐसा आदमी है जो अपने बैल को थान से खोलकर सबके दिन पानी पिलाने नहीं ले जाता? लेकिन यहां नस्ल इब्राहिम की एक बेटी है जिसको शैतान ने 18 बरस से जकड़ रखा था। क्या सबके दिन उसे आजाद न किया जाता?
नेक उस्ताद, मुझे क्या करना होगा कि मैं हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकूं? तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं, नेक सिर्फ खुदा है। तुम अहकामात को जानते हो। हरामकारी न कर, किसी को कत्ल न कर, न किसी पर झूठा इल्जाम लगा, अपने माँ बाप की इज्जत कर। मैं तो जवानी से लेकर अब तक इन अहकामात को मानता रहा हूं। लेकिन तेरे लिए अभी एक और काम करना बाकी। ऐसा कर, अपना सब माल बेचकर गरीबों को दे दे, फिर तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। फिर आ और मेरे पीछे हो ले। मगर हम तो ताजिर हैं, दौलतमंद। अमीर का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कितना मुश्किल है। अमीर का खुदा की बादशाही में दाखिल होना उतना ही मुश्किल है जितना ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना। तो फिर कौन पा सकता है? जो आदमी के लिए नामुमकिन है वो खुदा के लिए मुमकिन है। खुदा की बादशाही हकीकतन कहाँ होगी? खुदा की बादशाही ज़ाहिर तौर पर नहीं आएगी। कोई ये नहीं कहेगा देखो ये यहाँ है, ये वहाँ है। खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। वक्त आएगा जब तुम इब्ने आदम के दिनों में से एक को देखने की ख्वाहिश करोगे मगर देख न सकोगे। जैसे बिजली आसमान की एक तरफ से कौन कर दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिन में जाहिर होगा। लेकिन जरूर है कि वो दुख उठाए और उसके जमाने के लोग उसको रद्द कर दें। मगर आसमान और जमीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ते या शोशे के मिटने से ज्यादा आसान है। मैं तुम्हें बताता हूं, बहुत से नबी और बादशाह इन बातों को देखने के मुश्ताक थे जो तुम देखते हो मगर ना देख सके, और सुनने के ख्वाहिशमंद थे जो तुम सुनते हो मगर ना सुन सके। बताएं हम क्या करें? कलाम में क्या लिखा है और तुम उसे कैसे समझते हो? खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपनी मानद प्यार कर। ठीक कहते हो, ऐसा करो तो जियोगे। मेरा पड़ोसी कौन है? वो सिपाही तो नहीं हो सकते। कैसर के बारे में क्या ख्याल है? एक मर्तबा एक आदमी यरूशलेम से यरूह की तरफ जा रहा था। डाकुओं ने उसे घेर लिया, मारा पीटा और अधमुआ करके छोड़ गए। ऐसा हुआ कि काहिन उधर से गुजरा। जब उसने उसे देखा तो रास्ता कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी भी उधर आ निकला, उसके करीब गया, देखा और दूसरी तरफ निकल गया। फिर एक सामरी ने जो उसी राह पर सफर कर रहा था उस आदमी को पड़े पाया। जब देखा तो उसकी हालत पर तरस आया। वो उस आदमी के पास गया, तेल और में से उसके जख्म साफ किए और उन पर पट्टी बांधी। फिर उसको अपनी सवारी में डालकर सराय में ले गया, जहां उसकी खबरगिरी की। अगले दिन सराय के मालिक को चांदी के 2 सिक्के देकर कहा, इस आदमी की खबरगिरी करना, मैं वापसी पर जितना इस वक्त खर्चा आएगा अदा कर दूंगा। इन तीनों में से इस शख्स का जो डाकू में घिर गया था, तुम्हारे ख्याल में कौन पड़ोसी ठहरा? जिसने उसे बचाया। तुम भी ऐसा ही करो। छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। मैं सच कहता हूं, जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल नहीं करता वो उसमें दाखिल नहीं हो सकता। जो कोई इस बच्चे को मेरे नाम से कबूल करता है मुझे करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। तुम में जो छोटा है वो ही बड़ा है। से यसू नासरी जा रहे हैं। यसू! यसू! इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम फरमा। क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यह कि मैं देख सकूं। तो लो देखो, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया।
नजर आ रहा है, मैं देख सकता हूँ, देख सकता हूँ। जब यीशु यरूशलेम जा रहे थे तो उन्हें हर मकाम पर बहुत से लोग मिले। लोग उनसे नजात की राह दिखाने और खुदा की बादशाहत के बारे में सिखाने की इस्तेदा करते थे। ये आदमी यकीनन नबी है। मेरे खुदावंद, मेरे मालिक, मुझे बचाइए। ए खुदावंद, हमें बचाइए, हमें बचाइए। खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद, हमें सच्ची राह दिखाइए। लोग उसको खुदावंद और मालिक कबूल करने लगे। यरीहू में जक्काई नामी एक महसूल लेने वाला था। वो यीशु को देखने का इतना मुश्ताक था कि भीड़ से ऊंचा होने की खातिर दरख्त पर चढ़ गया। वो देखो महसूल लेने वाला। अच्छे उतरा जक्काई, आज मुझे तेरे घर में रहना है। मेरे घर? इसके घर में कौन रहना पसंद करेगा? जक्काई यीशु को कैसे जानता है? सुनो, मैं अपने माल का आधा हिस्सा गरीबों को, और अगर मैंने किसी का नाहक ले लिया है तो वापस करता हूं, वो भी 4 गुना। यकीन नहीं आता, एक महसूल लेने वाला महसूल की रकम वापस लौटाए। नामुमकिन। आज इस घर में नजात आई है क्योंकि ये आदमी भी इब्राहिम की नस्ल से है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। सुनो, हम सब यरूशलेम जा रहे हैं। वहां इब्ने आदम के हक में नबियों की मार्फत हर बात पूरी होगी। वो गैर कौमों के हवाले किया जाएगा, उसका मजाक उड़ाया जाएगा, वो उसकी तहकीर करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसको कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे, मगर वो तीसरे दिन जी उठेगा। अगरचे यीशु जानते थे कि वो आदमियों के गुनाहों के बदले मारे जाएंगे, उन्होंने यरूशलेम की राह ली। बहुत सारे लोगों ने उन्हें देखकर खुशी का इजहार किया और उन्हें अपना बादशाह बनाना चाहा। अपने शागिर्दों को चुप होने का हुक्म दें। तुम्हें मालूम हो, अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर खुद ब खुद चिल्लाना शुरू कर देंगे। अमन, इज्जत, सेहत। जब यीशु यरूशलेम के करीब पहुंचे तो उसे देखकर उनके आंसू बहने लगे। काश तू इस दिन सलामती की राह को जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई है। वो दिन आएंगे जब तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे हर तरफ से घेर लेंगे और तुझे तंग करेंगे, और इन्हीं दर दीवार में तुझको और तेरे बच्चों को तबाह करेंगे, बल्कि तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि तूने अपने वक्त को न पहचाना जब खुदा तुझ पर मेहरबान था। यरूशलेम में मुक़द्दस हैकल इबादत गाह की बजाय तिजारत का मरकज़ बन गई थी।
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये लिखा है, मेरा घर खुदा का घर होगा, मगर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। वो मेरे जानवरों की तरफ आ रहा है, उसे रोको भी। सिपाहियों को बुलाओ। उनके खिलाफ सियासतदानों और मजहबी रहनुमाओं की मुखालिफत बढ़ने लगी, क्योंकि लोग उन्हें बादशाह कहकर पुकारते थे। मैंने सुना है कि लोगों ने उसे बादशाह कहना शुरू कर दिया है। बादशाह? बादशाह भीखमंगों और चोरों का बादशाह? उस जैसे बहुत देखे हैं, आते हैं, दावे करते हैं और चले जाते हैं, सहन से उतर जाते हैं। अंधे न बनो, उसके पैरों रोज बरोज बढ़ रहे हैं और लोग उसकी इज्जत करते हैं। उसे बादशाह समझते हैं। मैं आपको आगाह करना चाहूंगा, अगर इस आदमी ने आइंदा कोई नुकसान अमन किया तो आपकी जिम्मेदारी होगी। वो ठीक कहता है। अब वक्त है कि गलील को रोका जाए। जब रियाकार फकीहों और फरीसियों का यह तबका उनकी सख्त तनकीद का निशाना बनने लगे तो बहुत से यहूदी उनके पीछे हो लिए। इस तरह वो लोग जो निशाना तनकीद बने और ज़्यादा मुखालिफत करने लगे। ये तो बहुत कम है, इससे ज्यादा नहीं दे सकती? मैं बताता हूं, इस गरीब बेवा ने सबसे ज्यादा डाला है, क्योंकि उन सब ने तो माल की फरावानी से नजर का चंदा डाला, मगर इसने नादारी में जो कुछ इसके पास था डाल दिया। हमें बताएं, आप ये बातें किसके इख्तियार से करते हैं? आपको यह हक किसने दिया? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताएं, यूहन्ना का बपतिस्मा खुदा की तरफ से था या आदमी की तरफ से? हम क्या कहें? अगर कहें खुदा की तरफ से, वो कहेगा तो फिर तुमने यकीन क्यों न किया? अगर हम कहें आदमी की तरफ से तो लोग हमें पत्थर मारेंगे, क्योंकि लोग समझते हैं कि यूहन्ना नबी था। हमें मालूम नहीं कहां से था। फिर मैं भी नहीं बताता कि मैं किस इख्तियार से ये सब चीजें करता हूं। एक दफा एक आदमी ने पाकिस्तान लगाया और उसे ठेके पर दे दिया। फिर तवील अरसे के लिए घर चला गया। जब फसल इकट्ठी करने का वक्त आया तो उसने अपने नौकर को ठेकेदार के पास भेजा ताकि वो फल का हिस्सा उसे दे दे, लेकिन बागबानों ने उसे पीट कर खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और नौकर को भेजा। बागबानों ने उसे भी पीट कर और बेइज्जत करके खाली हाथ वापस भेज दिया। फिर उसने तीसरे नौकर को भेजा, लेकिन बागबानों ने उसे भी जख्मी करके निकाल दिया। तब मालिक ने कहा, मैं क्या करूं? मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूंगा, शायद वो उसका लिहाज करें। जब बागबानों ने उसे आते देखा तो आपस में कहने लगे, ये मालिक का बेटा है, आओ इसे कत्ल करें कि मीरास हमारी हो जाए। हमें और बताएं। उसे पाकिस्तान से बाहर ले गए और उसे कत्ल कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान का मालिक उनके साथ क्या सलूक करेगा? वो आकर उन बागबानों को हलाक कर देगा और पाकिस्तान दूसरे बागबानों को दे देगा। फिर इस कलाम के क्या माने हुए? जिस पत्थर को मेमारों ने रब्त किया था वही पत्थर सबसे ज्यादा अहमियत हासिल कर गया। जो उस पर गिरेगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और जिस किसी पर भी वो पत्थर गिरेगा वो भी रेजा रेजा हो जाएगा। उस्ताद, आप सच फरमाते और सच ही सिखाते हैं। हम जानते हैं कि आप किसी आदमी की तरफ दर्ज नहीं करते और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देते हैं। हमें बता, क्या रूमी हुकूमत को जजिया देना हमारी शरीयत के मुताबिक रवा है या नहीं?
खुदावन ये आपको फांसने की चाल है। लाओ मुझे चांदी का एक सिक्का दिखाओ। बताओ इस पर किसकी शक्ल बनी हुई है? अब जो कैसर का है वो कैसर ही को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को। अब बताओ, बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो बोलो। अब फतीरी रोटी की ईद करीब आ रही थी, जिसे फसा कहा जाता था। और यीशु ने शमून, पतरस और यूहन्ना को फसा तैयार करने के लिए पहले भेजा। मेरी बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले मैं ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं इसे तुम्हारे साथ कभी नहीं खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। मुबारक है तू ए खुदावंद, इस कायनात के बादशाह, जो बेल से फल पैदा करता है। इसे लो और आपस में बांट लो। मैं तुमसे कहता हूं, अंगूर का शीरा तुम्हारे साथ न पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। मुबारक है तू ए खुदावंद, कायनात के बादशाह, जो जमीन से रोटी पैदा करता है। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। मेरी याद में यही किया करो। ये प्याला मेरे खून में नया अहद है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। बेशक इब्ने आदम तो जैसा खुदा ने ठहराया है मरेगा, मगर अफसोस उस पर जिसके वसीले से पकड़वाया जाए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नामुमकिन। गद्दार का नाम बताएं खुदावन। मगर तुम में जो बड़ा है छोटे की मानंद है, और सरदार खिदमत गुजार की मानंद है। बड़ा कौन है, जो खाना खाने बैठा या खिदमत करने वाला? बेशक वो जो खाना खाने बैठा, लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानंद हूं। मगर तुम मेरी सारी मुसीबतों में बराबर मेरे साथ रहे हो, और जैसे मेरे बाप ने अदालत का काम मुझे सौंपा है, मैं भी तुम्हें देता हूं। तुम मेरी बादशाही में खाओ और पियोगे। तुम तख्त पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। फिर तो कोई गद्दार ना हुआ। शमून शमून, देखो, शैतान ने चाहा कि तुम सबको आजमाए ताकि अच्छे और बुरे को अलग करे, जैसा कि किसान गेहूं को भूसे से जुदा करता है। मगर मैंने तुम्हारे लिए दुआ की शमून कि तुम्हारा ईमान न जाता रहे, और जब तुम मेरी तरफ लौटो तो अपने भाइयों को मजबूत करना। खुदावन, मैं आपके साथ कैद होने को भी तैयार हूं, बल्कि मरने को भी। तुझे बताऊं पतरस, आज मुल्क के बांग देने से पहले तू 3 बार इनकार करेगा कि तू मुझे जानता है। जब मैंने तुम्हें बगैर बटुए, थैले और जूते के भेजा था तो कोई कमी हुई? नहीं, किसी चीज की नहीं। मगर अब तुम अपना थैला या बटुआ अपने साथ जरूर रखो, और जिसके पास तलवार ना हो वो अपना कुर्ता बेचकर खरीदे। मैं तुम्हें बताऊं, कलाम में लिखा है कि वो बदकारों के दरमियान गिना गया। जरूर है कि जो मेरे मुतालिक लिखा है वो पूरा हो। देखें, यहाँ 2 तलवारें हैं खुदावन।
अब बस करो। यहूदी बुजुर्गों की मजलिस बैठी ताकि सोचें कि यीशु से कैसे छुटकारा पाया जाए। तब शैतान उस यहूदा इस्करियोती में समा गया जो उन 12 में से एक था। दुआ करो कि तुम आजमाइश में न पड़ो। यहूदा ने यीशु को चांदी के सिर्फ 30 सिक्कों के एवज पकड़वा दिया। यीशु जानते थे कि लोगों के गुनाहों के लिए उनकी मौत की घड़ी तेजी से करीब आ रही है। उन्होंने दुआ की। हाय बाप, अगर तेरी मर्जी हो तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मगर मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और एक फरिश्ता आसमान से आकर उन्हें तक़वियत देता था और उनका पसीना गोया खून की बूंदें बन बन कर जमीन पर गिरता था। तुम क्यों सो रहे हो? जागो, दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में न पड़ो। यहूदा, क्या तू बोझा लेकर अपने आदम को पकड़वाता है? खुदावन, आप कहें तो हम इन्हें। चलो इसे गिरफ्तार करो। बस करो, बहुत हो चुका। मोजज़ा? क्या तुम मुझे डाकू समझकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, लेकिन ये तुम्हारी घड़ी है और तारीकी का इख्तियार है। उसे गिरफ्तार करो। इस पर पैरा बिठाओ। सिपाही उन्हें सहन में ले गए और यहूदियों का बादशाह कहकर उनका तमस्खुर उड़ाने लगे। बताओ तो क्या होने लगा है? बादशाह साहब, क्या आप हमें बचाएंगे? क्या आप हमें नजात दिलाएंगे? ये आदमी भी यीशु के साथ था। मैं तो उसे जानता तक नहीं। मैंने इनको एक साथ देखा था। आपके फकीर खादिम। बताओ तो अब कैसा लगता है?
तुम भी उन्हीं में से हो? नहीं, मैं तो नहीं। ये आदमी भी यीशु के साथ था, फिर ये भी तो गलीली है। ओ रहने दो यार। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। यीशु ने मुड़कर पतरस की तरफ देखा। तब पतरस को खुदावंद की वो बात याद आई जो उन्होंने कही थी, आज मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। खुदावंद, हम मिन्नत करते हैं कि अपनी अजीम कुदरत के मुताबिक हमसे सलूक कर। तूने हमारे बाप दादा को इस वक्त माफ किया जब वो तेरे कलाम की बागी हुए। अगर तू उनसे खफा था, फिर भी तूने इन्हें बर्बाद न किया, क्योंकि तूने अपनी इस मोहब्बत, अहद और वफादारी की बदौलत जो तुझे उनसे थी, इन्हें बख्श दिया। तुझे किसने मारा है बता? नबूवत कर, अब कौन मारेगा? बस करो, मैंने कहा बस करो, इसे मजलिस में पेश करो। चलो। मजहबी बुजुर्गों की ये मजलिस यीशु की तफ्तीश के लिए बुलाई गई। हमें बताएं, क्या आप ही मसीह हैं? अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, और अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो तुम जवाब नहीं दोगे। लेकिन अब से लेकर इब्ने आदम कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठा करेगा। तो क्या तुम खुदा के बेटे हो? तुमने कहा मैं हूं। इसको ये कहने का इख्तियार किसने दिया? इसने जो कहा हमने कानों से सुना है। इससे पिलातुस के पास ले चलें। चलो। वो उन्हें पुन्तियुस पिलातुस के पास ले गए, जो रोमी हुक्मरानों में सबसे ज्यादा वैशी और हजारों को सलीब पर चढ़ाने का जिम्मेदार था। और तुम सुबह सवेरे यहाँ क्या लेने आ गए हो? ये आदमी लोगों को बिगाड़ रहा था। इसने हैकल के बाजार में हलचल मचा दी थी। इसकी सजा क्या होगी? इसे सजा दो। मुझे इस आदमी को सजा देने की कोई वजह नजर नहीं आती। हमारे ख्याल में ये मुजरिम है। वो कैसर को जज़िया देने से मना करता है, वो मसीह होने का दावा करता है, और बादशाह भी। बादशाह? क्या तू यहूदियों का बादशाह है? तुम ही ये कहते हो। शुरू तो उसने गलील में किया था, अब यहां भी आ गया है। गलील में? क्या ये आदमी गलीली है? फिर इस मामले को हेरोदीस ही निपटाएगा। वो अभी यरूशलेम में ही है ना? इसे वहां ले जाओ।
तुम अपने आप को क्या समझते हो? और वो कौन है जिनको तुम शागिर्द कहते हो? सुनने में आया है कि तुम बहुत से निशान दिखाते हो। मुझे भी तो कुछ दिखाओ। मेरे आका, ये सब लोगों को बिगाड़ रहा था। ये अपने आप को बादशाह कहता है। ये आदमी बादशाह? बादशाह सलामत। इसे खूब मारो। इसे पिलातुस के पास ले जाओ, ये उसका सूबा है। इस आदमी ने मौत के लायक कोई काम नहीं किया। मैं ऐसे कोड़े लगवाकर छोड़े देता हूं। आप हर साल इस ईद के मौके पर एक आदमी छोड़ देते हैं। हम छुड़ाते हैं बराबा को। और इस आदमी को खत्म कर दो। हमें बराबा दे दो। इसे सलीब दो। इसे सलीब दो। तुम इसे कोड़े लगाओ। किस बात का इंतजार है पिलातुस? ये यीशु है। इसे इतना क्यों मारते हो? इसे छोड़ दो, ये तो मसीह है। इसने कुछ नहीं किया। इसे उठाओ। लेकिन वो बुलंद आवाज से चीखते रहे कि यीशु को सलीब दो, सलीब दो। और पिलातुस ने यीशु को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया और बराब्बा को, जो बलवे और कत्ल के सबब कैद में था, आज़ाद कर दिया और यीशु को सलीब देने के लिए उनके हवाले किया। पीछे पीछे हटो, रास्ता छोड़ो, इससे दूर हटो। पीछे हटो, हट जाओ। अरे परे, हट जगह दो, हट जाओ। तुम रास्ता छोड़ दो। मैं कहता हूँ हट जाओ। उठो, उठो भी। क्या नाम है तुम्हारा? शमाउन क्रीनी सरकार। चलो इधर आओ। रस्सियां काट दो। तुम इसे उठा। आगे बढ़ो। पीछे। पीछे। रास्ता छोड़ो। आगे बढ़ो, रास्ता छोड़ो।
के लिए रोकते हैं। पी ले, पी ले। खुदावंद पी ले। यरूशलेम की बेटी हो, मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने और अपनी औलाद के लिए वावेला करो, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। खुदा आपकी मदद करे। हम आपके लिए दुआ करेंगे। आगे बढ़ो, चलो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी। अब तुम आगे बढ़ो, जल्दी करो, चलो जल्दी चलो, तेजी से चलो, अभी चलो, अब आगे बढ़ो, जल्दी बढ़ो। चलो जल्दी करो। अब उठो। तुम खूंटा करो। रस्सियां खींच लो। मैं बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। जिसने औरों को बचाया, अपने आप को बचाए। हाँ, अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा और सलीब से नीचे उतरा। हमें अपना कोई मुआजिजा दिखाओ। और यीशु खुदा के नबियों की पेशगोई के मुताबिक जो सैकड़ों साल पहले हुई थी, दो बदकारों के दरमियान मसलूब हुए। ये खासुल खास चोगा है, कोई आम नहीं। ये है, छोड़ो, वरना नहीं, मैं बताऊं, और पूरा डाले। ओहो, तुम तो खुशकिस्मत निकले। अब जीत गए हो तो इसका क्या करोगे? और एक कतबा उनके सर से ऊपर लगाया जिस पर लिखा था, ये यहूदियों का बादशाह है।
यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। मसीह नहीं, खुद बच और हमें बचा। क्या तो खुदा से नहीं डरता? इसको भी वही सजा मिली है जो तुमको, हालांकि इसने कोई बुरा काम नहीं किया। मुझे याद रखना यीशु, जब आप अपनी बादशाही में आए। मैं तुझसे वादा करता हूं, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब दोपहर हो चुकी थी और सारे मुल्क में 3 घंटों तक अंधेरा छाया रहा। और मक़दिस का पर्दा बीच से फट गया। बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूं। जब सिपाहियों के सरदार ने यह माजरा देखा तो उसने खुदा की तमजीद की और कहा, खुदा की ताज़ीम हो, यकीनन ये आदमी रास्तबाज था। अरमतिया का रहने वाला यूसुफ मजहबी मजलिस का रुकन इस कार्रवाई का हामी न था। उसने पुंतियुस पिलातुस से सब्त के दिन के गुरूब आफताब से पहले कब्र में उतारने के लिए यीशु का बदन मांगा। माफ कीजिए, हम अपने खुदावंद के बदन के लिए आई हैं। सबको इजाजत होगी, लेकिन चले, सबत का दिन करीब आ रहा है।
इतवार को सुबह सवेरे वो खुशबूदार चीज़ें और इत्र तैयार करके कब्र पर आईं। उन्होंने कब्र से पत्थर को लुढ़का हुआ पाया, लेकिन जब वो उसमें दाखिल हुई तो खुदावंद यीशु का बदन गायब था। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे क्या कहा था? इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाएगा और मसलूब होगा और तीसरे दिन जी उठेगा। पत्थर लुढ़का हुआ था, हम दाखिल हुई और खुदावंद का बदन गायब। क्या खुदावंद का बदन गायब था? और दो आदमी हम पर जाहिर हुए, फरिश्तों की मानंद, चमकते सफेद लिबास, और हमसे कहा, तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? ये सच है। यकीन करो, हमारा यकीन करो। हमने उन्हें देखा था, आप खुद जाकर देख ले, कब्र खाली थी और खुदाम जा चुके थे। पतरस, हमारा यकीन करो। यीशु अपने दो शागिर्दों पर जाहिर हुए, वो भी खुशी से भरे दूसरों के पास आए। वाकई खुदावंद जी उठे हैं, वो शमऊन पर जाहिर हुए थे। हम तो राह में भी उसे पहचान न सके। जब उन्होंने रोटी तोड़ी तब पता चला। अमाउस में उनका वहां जाना अजीब है। तुम्हारी सलामती हो। तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम्हारे जहन में शक कहां से आ गए? देखो, मेरे पांव और हाथ देखो और जानो कि मैं ही हूं। छू कर देखो तो जान जाओगे। रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही जब मैं तुम्हारे साथ था। क्या हर एक बात जो मेरे मुतालिक मूसा के तौरात, नबियों के सहाइफ और ज़बूर में लिखी गई पूरी हो? इनमें यूं लिखा है, जरूर है कि मसीह दुख उठाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और उसके नाम से तमाम कौमों में तौबा की और गुनाहों की माफ़ी की मनादी की जाएगी। इब्तिदा यरूशलेम से होगी। तुम इन बातों के गवाह हो और मैं अपने बाप का वादा तुम सबके लिए पूरा करूंगा, मगर तुम इस शहर में ठहरे रहो जब तक कि आलम वाला से तुम्हें क़ुव्वत का लिबास न मिले। खुदावंद तुम्हें बरकत दे। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन।
कलाम मुक़द्दस में मरक़ूम है कि खुदावंद खुदा मसीह को भेजेगा ताकि वो गुनाहगारों को बचाए और खुदा के साथ उनके रिश्ते को बहाल कर दे। यसू मसीह की जिंदगी वाज़े तौर पर इस बात की तस्दीक करती है कि आने वाला निजात दहिंदा वही है जिसका खुदा ने वादा फरमाया था। ईसाया नबी की मार्फत लिखा है कि एक कंवारी हामला होगी और बेटे को जन्म देगी, और ऐसा ही हुआ। मुक़द्दसा मरियम जो कंवारी थीं, क़ादिर मुतलक़ की कुदरत से हामला हुई और उनसे यसू अल मसीह पैदा हुए। जैसे कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यसू अल मसीह की पैदाइश खुदा की तरफ से इस बात की अलामत थी कि यही बच्चा मसीह है जिसे खुदावंद खुदा ने अपना बेटा कहकर पुकारा है। जब लोगों ने यसू को देखा तो उन्होंने खुदा की कुदरत और कुव्वत को देखा। आपने लोगों को शिफा बख्शी और उनके गुनाह माफ किए। आपने उनसे अपनी अबदी बादशाहत में जगह देने का वादा फरमाया। यसू ने तमाम बनी नौ इंसान की खताओं के वास्ते अपनी जान फिदिये में दी। यसू मसीह मरने के बाद फिर जिंदा हुए, जो इस बात की दलील है कि उसकी कुदरत मौत के इख्तियार से कहीं बढ़कर है। यसू मसीह ने फरमाया कि मुझे अपनी जान देने और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। यसू मसीह की जिंदगी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे नबियों की मार्फत पेशनगोइयां की गई थीं। यसू मसीह की जिंदगी इस बात का सबूत थी कि नबियों की मार्फत खुदा का कलाम सच्चा और ला तब्दील है। जैसे कि नबियों की मार्फत फरमाया गया था कि कलाम खुदा हर ऐब से पाक और अबदी है। यसू मसीह ने खुद फरमाया कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरा कलाम अबद तक कायम रहेगा। इब्तिदा में खुदा ने आदम और हव्वा को पैदा किया ताकि वो खुदा की रफाकत में खुश रहें, लेकिन उन्होंने खुदा पर भरोसा ना किया और उसकी हुक्मदूली की। उनकी इस नाफरमानी ने उन्हें खुदा से जुदा कर दिया। कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है कि सब इंसानों ने गुनाह किया और गुनाह का नतीजा मौत है। गुनाहगार लोग खुदा की हुजूरी में ठहर नहीं सकते। मगर जिस तरह खुदा ने एक मेंढा मुहैया किया कि वो अब्राहम के बेटे की जगह कुर्बान हो, उसी तरह यसू मसीह को दुनिया में भेजा कि वो बनी आदम की खातिर कुर्बान हो। यसू मसीह की जिंदगी मौत और जी उठने की सच्चाई पर ईमान लाने की वजह से बनी आदम का रिश्ता खुदा से बहाल हो गया। पतरस ने फरमाया कि यसू मसीह ही वो शख्सियत हैं जिनके मुतालिक अंबिया ने फरमाया है कि जो कोई यसू पर ईमान लाएगा खुदा उसके गुनाह माफ कर देगा। लिहाजा वो जो यसू पर ईमान लाते हैं जहन्नुम की सजा से बच जाएंगे और अब तक खुदा की हुजूरी में रहेंगे। जब यसू मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि सारी कौमों में मेरे नाम से इस बात की मनादी की जाएगी कि खुदा उन सब के गुनाह माफ फरमाएगा जो अपने गुनाहों से तौबा करते, मेरे जी उठने पर ईमान रखते और खुदा की तरफ रुजू करते हैं। यसू ने यह भी फरमाया कि मैं खुदा का पाक रूह भेजूंगा ताकि वो मेरे लोगों के साथ रहे और उन्हें सच्चाई की राह दिखाए और उस पर चलने की कुव्वत बख्शे। जब एक गुनाहगार औरत ने अपने गुनाहों से तौबा की और यसू की पैरवी करने लगी तो यसू ने उससे कहा, तेरे गुनाह माफ हुए क्योंकि तुम मुझ पर ईमान लाई हो, इसलिए तुमने निजात पाई। यसू ने फरमाया कि जब लोग हकीकत में खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो इस बात का बयान सबूत है कि खुदा ने उनके गुनाह माफ कर दिए हैं। यसू अल मसीह ने लोगों को दावत दी कि मेरे पीछे हो लो। जब सलीब पर लटका हुआ मुजरिम यसू पर ईमान लाया और कहा कि यसू मुझे बचा, तो यसू ने फरमाया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जिन लोगों ने मसीह की पैरवी करने का फैसला कर लिया है अपने रिश्ते की इब्तिदा इन अल्फाज से कर सकते हैं, ऐ खुदावंद खुदा, कायनात के मालिक, तू पाक और असीम है। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू मुझे एक बाप की तरह प्यार करता है। मुझे अफसोस है कि मैंने तेरे हुक्मों की नाफरमानी की है और तेरे खिलाफ गुनाह किया है। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने यसू को भेजा ताकि वो मेरी खातिर सलीब पर मौत का वारा करे और मुर्दों में से जी उठे। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि यसू ने मेरे गुनाहों की खातिर सजा पाई। मैं तेरे बताए हुए रास्ते पर चलना चाहता हूं और मसीह यसू को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा मानता हूं। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरे गुनाह माफ कर दिए और मेरे लिए फिरदौस के दरवाजे खोल दिए हैं ताकि मैं हमेशा तेरी बादशाही में तेरे साथ रहूं। ऐ खुदावंद खुदा, मैं दरख्वास्त करता हूं कि मुझे अपना रूह पाक बख्श दे जो मेरे साथ रहे और तेरी राह दिखाने में मेरी रहनुमाई फरमाए। रूह पाक मुझे कुव्वत बख्शे कि मैं पूरे दिल से तुझसे मोहब्बत रखूं और तेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूं। ऐ खुदावंद खुदा, काश कि इस दुनिया में हर जगह लोग तेरी हम तो तारीफ करें। आमीन। यसू अल मसीह ने अपने लोगों के मुतालिक फरमाया कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरी पैरवी करती हैं। यसू अल मसीह के लोग उन सबसे रफाकत रखते हैं जो यसू से मोहब्बत रखते और हर रोज़ उससे हम कलाम होते और कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं। वो उसकी पैरवी करते और उसकी मोहब्बत का दूसरों से बयान करते हैं। यसू रूहुल कुद्स के वसीले से जो उसके लोगों के दिलों में रहता है उनकी मदद और रहनुमाई फरमाता है। जब यसू अपने आसमानी तख्त की जानिब बादलों पर उठाए गए तो उनके पैरोकारों ने उनके इस कौल को ज़हन नशीन कर लिया कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है और याद रखो कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ।